Good morning everyone. Welcome to my channel Visionary Vibe. Hope so you had understood the last lecture which we had done on gravitation. So today we are going to do the second lecture of gravitation. Okay. So in this lecture we'll just do the learning very easy in a very simpler way. So keep learning, keep going. Okay. So when starting to this point, okay, starting to this lecture, first we will see what is Newton's universal law of gravitation. So what is Newton's law of universal gravitation? Okay, now yesterday what we had seen the Kepler's, okay, Kepler's law. What we had seen the Kepler's law. So of the planetary position, Kepler's law of the planetary position. Now we had observed all the three laws of Kepler's yesterday, but there was no fruitful outcome of that laws. Okay, so today we are going to see in the Newton's universal law of gravitation. So in this, so all considering all the above considerations, including Kepler's, led Newton to formulate what? His theory of universal gravity. उन्होंने क्या फॉर्मुलेट किया? थियोरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटी. सो अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी, ये थियोरी के हिसाब से every object on the universe attracts every other object with a definite force. एक फोर्स से वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है. ओके, सो दिस फोर्स इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द masses of the two objects. Okay, directly proportional to the product of the masses of the two objects and inversely proportional to the square of the distance between them. Okay, so it is given by this formula. Okay, so F is directly proportional to the product of the masses and square of the distance. Now F is equal to G m1 m2 upon d square. Okay, तो यहाँ पे G क्या है? G is the gravitational constant. क्या है G यहाँ पे? G is gravitational constant. Hope so this formula is very much clear to you. Okay, so in this, the above law means that if the mass of an object is doubled, the force between the two objects also doubles. Okay, मैंने क्या बोला? If the mass of one object doubles, the force also doubles. फोर्स क्या होगा? वो फोर्स भी डबल हो जाएगा. ओके, एंड ऑल्सो इफ द डिस्टेंस इज डबल्ड, अगर ये डिस्टेंस डबल हो जाएगा तो क्या होगा? फोर्स विल बी डिक्रीज्ड बाय द फैक्टर 4. फोर्स क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा. कितने फैक्टर से? तो 4 फैक्टर से. सो इफ द टू बॉडीज आर स्पेरिकल मतलब क्या? गोलाकार का. अगर टू बॉडीज है, okay, the direction of force will always along the line joining the center. So उनका जो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? joining the centers of the two bodies and distance of the force always along the line. Okay, so in this case, so when the bodies are not spherical, अगर ये bodies अगर spherical नहीं है, मतलब वो उनका जो shape है वो irregular shape है, मतलब वो सर्कल में नहीं है. Okay, at that time what happens? Then the direction of the force along the line joining center of mass and d is taken to be the distance between the two center of the mass. आई बात समझ में? Okay, so from this equation it can be seen that क्या पता चलता है? G क्या है? G is the gravitational force acting between the two masses kept at the unit distance away from each other
ओके, thus the SI यूनिट, इसका SI यूनिट क्या है? द वैल्यू ऑफ G इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द मासेस ऑफ 1 kg. कितना मासेस? कितना? 1 kg kept apart at a distance of 1 meter. मतलब 1 kg मास है जो 1 मीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है. ओके, तो इसका जो ऐसा यूनिट है, तो ये ऐसा यूनिट क्या है इसका? न्यूटन मीटर स्क्वायर. इसका ऐसा यूनिट क्या है उसका? इसका ऐसा यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. ऐसा यूनिट क्या है इसका? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. ओके, नाउ ऐसा यूनिट तो मैंने तो आपको बता दिया है. द वैल्यू ऑफ जी वॉज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड बाय हेनरी कैवेंडिश. किसने मेजर किया था? हेनरी कैवेंडिश ने. ओके, सो इन ऐसा यूनिट बाय हेनरी, उसके हिसाब से जो ऐसा यूनिट है वो क्या है? 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. अकॉर्डिंग टू हेनरी कैवेंडिश ऐसा यूनिट का वैल्यू क्या है? 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg पर kg स्क्वायर. यहाँ तक आपको बात समझ में आई? ओके, अभी हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर. ओके, सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स. ओके, ये तो हम लोग कंसिडर करने वाले ही है, लेकिन इसके ये तो हम लोग कंसिडर करने वाले ही है. ओके, बट हाउ वी विल यूज दिस whatever formula what I wrote in the circular motion when a object is moving in a circular motion में क्या हम लोग यूज करने वाले हैं, ये भी हम लोग देखने वाले हैं. ओके, सो विल सी यूनिफॉर्म circular motion. Okay, uniform circular motion and or we can say magnitude of centripetal force. Now what we are going to see in this, I'll just derive one derivation in this. Okay, लेकिन पहले हम लोग समझते हैं कि ये क्या चीज है. Okay, now consider an object moving in a circular motion. कंसिडर कीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर वे में ऐसा घूम रहा है विथ अ कांस्टेंट स्पीड. एक कांस्टेंट स्पीड में एक ऑब्जेक्ट है जो कि ऐसा गोल ऐसा घूम रहा है. सो वी हैव सीन अर्लियर दैट सच अ मोशन, ये जो मोशन है जो हमने देखा था, ओके, इज पॉसिबल इफ द ऑब्जेक्ट इज कॉन्स्टेंटली एक्टेड बाय अ फोर्स, ओके, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल. आई बात ये समझ में? मैं फिर से बता रही हूँ. वी विल कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन विद अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर वे. ओके, इट इज पॉसिबल. कब पॉसिबल होगा वो? जब वो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा होगा. ओके, सो दिस फोर्स इज कॉल्ड एज व्हाट? सेंट्रीपिटल फोर्स. अभी ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है मैंने आपको लास्ट के लेक्चर में बताया था. सेंट्रीपिटल फोर्स इज द सेंटर सीकिंग फोर्स. इट इज कॉल्ड एज व्हाट? इट इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स. सो इफ m इज द मास ऑफ अ ऑब्जेक्ट, m क्या है? ऑब्जेक्ट का मास है. m क्या है? m इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट. m is the mass of the object. Okay, and v is the, okay, m is the mass of the object and v is the speed of an object. v क्या है? उसका स्पीड है. वो ऑब्जेक्ट का है ना, स्पीड है. v is the speed of the object. और उसका जो रेडियस है विल कंसिडर एज r. r is what? r is the radius of that object. r is the radius of an object. r is the radius of an object. Now if this object is moving in a circular way,
ये जो ऑब्जेक्ट है वो एक कॉन्स्टेंटली एक सर्कुलर वे में घूम रहा है, तो उसका फोर्स किसे इक्वल होगा, F इज इक्वल टू, किसे इक्वल होगा, F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ओके, अभी आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन टू ट्रेवल दैट डिस्टेंस, ऑल ऑफ यू नो दिस। So we'll consider this F is equal to mv square r for a object which is moving in a circular motion. Okay, so if a planet, consider if a planet is revolving around the sun in a circular motion, okay, circular motion, तो क्या होगा, देन द सेंट्रीपिटल फोर्स, अभी इसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है एक्टिंग ऑन द प्लैनेट टूवर्ड्स द सन, इट विल बी व्हाट, इट विल बी F इज इक्वल टू, तो वो क्या होगा, F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो उसका क्या रहेगा, फोर्स क्या रहेगा, F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ओके, सो वेयर, अभी आपको पता है M क्या है, मास है, V क्या है उसका स्पीड है, और R क्या है उसका डिस्टेंस है। ओके, सो द स्पीड ऑफ द प्लैनेट, अभी ये जो प्लैनेट का जो स्पीड है कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, किस पे एक्सप्रेस करेंगे वो हम लोग करेंगे वो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम लोग पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, इट इज गिवन बाय द अल्फाबेट period of revolution, it is given by alphabet T। या तब आपको बात समझ में आ गया। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ प्लैनेट इन वन रिवॉल्यूशन, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ प्लैनेट इन वन रिवॉल्यूशन। अभी यहाँ पे सर्कल, इफ आई टेल यू सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या है वो, C इज इक्वल टू 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या है 2 पाई आर। अभी यहाँ पे मैं ये क्यों लिख रही हूँ, बिकॉज ये जो प्लैनेट है वो कैसा घूम रहा है, इट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, एक सर्कुलर ऑर्बिट पे वो प्लैनेट घूम रहा है। सो तो उसका डिस्टेंस हम लोग कितना कंसिडर करेंगे, उसका सर्कमफ्रेंस क्या है उसका 2 पाई आर। ओके, यहाँ पे आर क्या है, डिस्टेंस है, आर क्या है उसका डिस्टेंस है, ओके, ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन, और टी क्या है, टी इज द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, टी क्या है उसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। सो v इज इक्वल टू, अभी यहां से हमारा डेरिवेशन चालू होता है। सो v इज इक्वल टू क्या आएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, v क्या है हमारा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन क्या आएगा, टाइम टेकन टू ट्रेवल दैट डिस्टेंस, टाइम टेकन टू ट्रेवल दैट डिस्टेंस। इज इट क्लियर? तो डिस्टेंस ट्रेवल हमारा कितना आ गया है, 2 पाई आर, दैट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल और दैट रिवॉल्यूशन ऑफ दैट प्लैनेट। ओके, अपॉन क्या है उसका, टी क्या है उसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, किसे दिया जाता है वो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। नाउ वी विल दिस फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है v इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन टी, ये जो फॉर्मूला है, नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट दिस फॉर्मूला इन द इक्वेशन ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसे सब्स्टिट्यूट करते हैं। आई जस्ट इरेज दिस साइड सो वी कैन, I can derive it very properly and you can observe it very properly. So I'll just erase everything so the derivation looks good. Okay, हाँ, तो मैं क्या बता रही थी, v इज इक्वल टू, v क्या है हमारा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ओके, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन क्या है हमारा, distance traveled upon time taken to travel that distance, time taken. Now we will go towards the first formula. Okay, so v is equal to what, 2 pi r upon t. Till here it's clear to everyone. Okay, now f is equal to mv square upon r. Okay, अभी m क्या है,
हम लोग ये क्यों ले रहे हैं, we'll just see over here. Okay, so first of all, F is equal to mv square upon r. Substituting value of v in equation 1. When we substitute the value in equation 1, what we are going to get? We are going to get F is equal to m. Correct? V क्या है हमारा? This is V. क्या है हमारा? 2 pi r upon t. 2 pi r upon t का क्या है? होल स्क्वायर. इसका क्या है? होल स्क्वायर. अपॉन क्या है यहाँ पे? r. अपॉन क्या है यहाँ पे? r. यहाँ तक अभी समझा आपको? ओके. अभी जो नेक्स्ट स्टेप है, इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी आर गोइंग टू डू, f इज इक्वल टू m. अभी ये 2 पाई r अपॉन टी द होल स्क्वायर है, उसे हम लोग सॉल्व कर देते हैं. तो क्या होगा ये? मैं ब्रैकेट में पहली बार रखती हूँ. 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर अपॉन r. आई बात यहाँ तक समझ में? यहाँ पे मैंने क्या किया, f इज इक्वल टू m, ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर को मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया. आफ्टर सॉल्विंग दिस what we are getting? We are getting 4m pi square. 4m pi square. F is equal to 4m pi square. Okay, 4m pi square r. Okay, अभी ये r क्यों आया यहाँ पे? Because this r और ये स्क्वायर है, ये दोनों कट हो गए. ये r है और ये r स्क्वायर है, कट हो गए. तो बचा क्या? We got only t square. Is it clear? यहाँ तक आपको समझ में आया? ओके, अगर यहाँ तक समझ में आया होगा तो नेक्स्ट स्टेप तो बहुत ही इजी है. ओके, सो 4m पाई स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर. सो f इज इक्वल टू ओके 4m पाई स्क्वायर अपॉन r इंटू टी स्क्वायर. नाउ हियर वी आर गोइंग टू टेक अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ. क्या आएगा अकॉर्डिंग टू केपलर्स? क्या है कांस्टेंट? क्या है हमारा? टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब क्या है हमारा? कांस्टेंट है. करेक्ट. सो आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर. करेक्ट. दिस इज अकॉर्डिंग टू व्हाट? दिस इज अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ. ये क्या है? दिस इज अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ. ओके, तो आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर क्या है हमारा? इट इज व्हाट? इट इज कांस्टेंट. मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया. टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब क्या है हमारा? टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज कांस्टेंट. ओके, अकॉर्डिंग टू व्हाट? अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ. तो अभी हमारा ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू जो भी टी स्क्वायर है और जो भी आर क्यूब है वो क्या होगा हमारे यहाँ पे? बिकॉज ये टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब है, यहाँ पे क्या होगा हमारा? के. मतलब जो भी ये फॉर्मूला में है इट विल बिकम के. तो क्या होगा? 4m पाई स्क्वायर. 4m पाई स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर के. r स्क्वायर के. ओके, के क्या है हमारा? कांस्टेंट है. लेकिन 4m पाई स्क्वायर अपॉन के ये भी क्या है? 4m पाई स्क्वायर अपॉन के ये भी क्या है? ये भी एक कांस्टेंट है. ये भी क्या है? इट इज ऑल्सो अ कांस्टेंट. ये भी क्या है हमारा? कांस्टेंट है. अगर ये भी कांस्टेंट है तो हमारा क्या रहेगा? फॉर्मूला क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू कांस्टेंट. देखो ये भी क्या है? 4m पाई स्क्वायर अपॉन के क्या है? ये भी हमारा कांस्टेंट है. तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय क्या बचा है? आर स्क्वायर. कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय क्या बचा है हमारा? आर स्क्वायर. ओके, इसका मतलब क्या है? F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर. ओके, सो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. तो इससे क्या हो गया? हमारा न्यूटन का जो भी लॉ था वो प्रूफ हो गया. ओके, जो कि मैंने ये लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था. क्या लॉ मैंने बताया था?
क्या लॉ बताया था मैंने कि फोर्स इट इज directly proportional to the mass product of the masses and inversely proportional to the distance between that. So hence it is proved over here. Okay, so Newton, the due to this, okay, it was concluded that the position of the planet, it is following this rule. So force acting on the planet and it's responsible, it is responsible for its circular motion, hence it is concluded over here. Okay, so it is inversely proportional as I told you, as we had proved here. So Newton identified the force. So कौन सा फोर्स है? दिस फोर्स, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. कौन सा फोर्स है ये? फोर्स ऑफ ग्रेविटी. एंड हैज पोस्टुलेटेड द इनवर्स स्क्वायर. ओके, तो क्या पोस्टुलेट किया? इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. नाउ दिस फोर्स इज वेरी मच वीकर. ये जो फोर्स है, ये फोर्स बहुत वीकर है. ओके, एंड दिस फोर्स कंट्रोल्स द यूनिवर्स एंड डिसाइड्स इट्स फ्यूचर. ये जो फोर्स है यूनिवर्स को कंट्रोल करता है, उसका फ्यूचर डिसाइड करता है. सो दिस इज पॉसिबल. Why it is possible? It's possible only because of the huge masses of the planets, stars and the celestial bodies in the universe. आई बात समझ में? होप सो आपको ये लेक्चर बहुत फ्रूटफुल लगा होगा. होप सो you understood all the concept which I tried to solve over here. चलो, let's see numericals and everything in the third lecture. Okay, so if you like my video, just like and subscribe my channel Visionary Vibes. See you in the next video. Keep learning, keep growing.